So today we will be discussing the fourth session of Journey of Self-Discovery course. So today's topic is very important. Before we proceed, we'll do some prayers. You can just fold your hands and be with me. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Welcome all of you for the fourth session of Journey of Self-Discovery course. Today we are going to discuss very important subject matter, which is who am I? Before we start, if someone asks you, who are you? What will be the most probable answers? Can you suggest? If someone asks you, like if I say to Rohit, who are you? So what will you explain? Yes, Rohit. Yes, sir. What will you say if I ask you that who are you? पंच तत्व के मिश्रण है. Okay, पंच तत्व के मिश्रण है. अच्छा, very nice. Vasav, what do you say? Who are you? Nandini, what do you say? Who are you? बेसिकली ज़्यादातर लोग अपना नाम ही बताते हैं कि अगर कोई पूछता है हुआ है तो आई एम नंदिनी अग्रवाल या फिर नाम से ही इंट्रोड्यूस करते हैं. Okay. Mangal, what do you will say? What will you say? सर एक्चुअली आई डोंट नो सर, बट आपने बोला था हम परमात्मा के अंश हैं. हाउ कैन, मतलब नाम से इंट्रोड्यूस कराएंगे और क्या? नाम से इंट्रोड्यूस करें. Okay. So whenever somebody asks you, who are you? So people say that I am so and so, I am son of this person, I am Mr. Sanatan, I am living in India, or I am from Shimla, or these all things which are my information regarding me. But if someone asks you, like this hand,
If someone asks, whose hand is this? Then what somebody will say? He will say, this is my hand. Similarly, if this head is there, someone says, whose head is this? This is my head. So, if someone is asked about what is his identity, he will tell name, his designation, his company, etc. So now you have to see on your screen. Now it is very, very important video which I'm going to show you. Before the video, I'll just share. You just see in the screen. Okay. Who am I? Whenever we take birth, then at the time of taking birth, we don't have any name. Who was I at that time? Because at that time, I didn't had any name. I didn't had any job. I didn't had any college. Like if someone asks Mangal will say, I am Mangal. I belong to such and such place, and I am studying in JP University. But at the time of birth, Mangal was not studying in JP University. Then at the time of death, what happens? Where do we go at the time of death? The body is intact, but at the time of death, people say that the person has gone. So this goes to show, this persuades us to the question, this brings us to the question, who am I exactly? Because these all things which I tell have been given to me as an identity. After my birth, these all identities have been given to me. But these different identities are not me. So who am I? So some people say that I am a male. Some say I'm a female. Some say I'm a businessman. Some say I'm a sportsman. Some say I'm an American. Some say I'm a Japanese. Some say I'm a Hindu. But these all things are just designations of this body. These all things are just designations of this body. Who am I? But these designations are regularly changing. Somebody may be a businessman and he can change to something else. And he may give up his profession as a businessman and he can just take to some other way or some other way of livelihood. So who am I? This thing regularly changes. But I am the same, different things can change. Sometimes some people even change the nationality. They take the nationality of become the citizen of America. So that means this can change. That means who am I then? Am I an Indian? Am I an American? Or am I an engineer? Some of the engineers are doing farming, organic farming and all. That means it's all changing.
So who am I actually? Now, some people say that it is just a conglomeration of chemicals. The body is just a conglomeration of chemicals. If the body is just a conglomeration of chemicals, do you know what is the cost of the body? This is the body's different configurations. Calcium is 5 pounds, phosphate is 1.5 pounds, potassium is 9 ounce, 6 ounce sulfur, sodium 6 ounce, magnesium 1 ounce, iron, copper, iodine. This is a study by Dr. Harry Monson. He is the professor of anatomy, Illinois College of Medicine. Now, according to this, the cost of the body will be 410 rupees. If we are just chemicals. If we are just chemicals, then the cost of the body will be just 410 rupees. But if someone kills someone, somebody kills someone, then what? So there was a glitch. So can you repeat that last one? That when you kill somebody. So if someone kills somebody and then he says that, okay, you take this 410 rupees. That was the cost. So I am giving you. So this is not correct. Because we have seen that body is much more than only these chemicals. But if it is not so, that only the chemical is there, then what is the difference? So in Bhagavad Gita, it is said that you are an eternal soul, which is which is regularly changing different bodies. Now I'll show you one video. You just see and I'll ask questions on the basis of it. Okay, you can just see this video. Okay. So what did you infer from this video? Anyone can tell? What did you infer from this video? सर की रंग, देश, भाषा सब कुछ अलग हो सकता है, बट जो इंटरनल चीज है वो सेम ही रहती है. मतलब when it's a newborn baby, it's मतलब सेम कैटेगरी में रहते हैं. वो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो सेम लेवल पे होता है सारे. उसके बाद अकॉर्डिंग टू जिस कल्चर में वो जा रहे हैं वो वैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं.
बट स्टार्टिंग इनिशियली तो सब सेम ही थे। Okay. Anybody else? कोई और कुछ बताना चाहेगा? ये जो वीडियो आपने देखा इसमें क्या आपने सीखा? तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, we have seen that the same soul is changing different bodies, the same soul is changing. So this is what is given in the scriptures, that the soul is inside these bodies. Just like if suppose there is an accident, who is more important? Is the car more important or the person more important? The person is more important because of him the car is running, and the person is very valuable, but the car can be created again, but the person cannot be created again. Although the car is having eyes, sound, headlight, and it is also moving through tires, but still the car cannot move without the driver. Now there is another example to understand this concept of soul. Just like there is a, ये आप देख रहे हैं, ये एक पिंजरे में एक पक्षी है. इफ अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल इस पिंजरे के ऊपर पेंट करता है, इसको पोंछता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस पक्षी को खाना नहीं देता, तो क्या होगा? कोई व्यक्ति अगर, हाँ, वो मर जाएगा. उसी तरह से ये जो शरीर है ये एक पिंजड़े के जैसा है. इसके अंदर जो पक्षी है वो आत्मा है. जैसे पक्षी पिंजरे में फंस गया है, उसी तरह से आत्मा भी ये शरीर में रहती है, और हम केवल इस शरीर को ही, बाहर के शरीर को पेंट करते रहते हैं, बहुत टेक केयर करते रहते हैं. और हम ये देखते हैं कि कभी खुश होते हैं हम, कभी दुख होते हैं. तो क्या कोई केमिकल कभी खुश हो सकता है? अगर ये केवल केमिकल है तो क्या कभी खुश हो सकता है, कभी दुखी हो सकता है? एक रोबोट अगर आप देखो तो वो भी चलता है, वो भी बोलता है, देखता है, स्मरण करता है, सब कुछ करता है. It remembers, it gives answers, but still it is not a human being. Although if somebody may say that it's a robot and it can do many things, we will be astonished to see such a robot, but still we will not say that it is a living thing, because it is not having any feeling, it is not willing anything, it is not desiring anything. So there is no consciousness in this. Now, this goes to show that there is something inside the body which makes the body run. ये जो शरीर है उसको चलाए रखती है, ये कोई तो चीज है. अब इसका प्रमाण क्या है? What is the proof that soul exists? So there are three types of प्रमाण, और तीन तरीके के प्रूफ हैं इसमें. एक तो पहला है तर्क, इससे भी समझा जा सकता है. दूसरा है वैज्ञानिक प्रमाण,
वैज्ञानिक प्रमाण वो कुछ प्रूफ्स के तरीके से समझेंगे और शास्त्रों से समझेंगे। तो सबसे पहला है तर्क। अब कोई देखिए यहां पर, अगर आप देख सकते हैं यहां पर देखिए, यहां पर एक बादल है, बादल के पीछे सूर्य है। तो कोई कहे कि सूर्य तो है नहीं, लेकिन कैसे पता चल रहा है कि हम ये सूर्य है? क्योंकि वहां पर उजाला है। तो हर एक चीज को उसके लक्षण से जाना जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो हम लोग हैं अनुभव करते हैं, इच्छाएं प्रकट करते हैं, सोचते हैं, चेतन हैं, इन सब से ये प्रूफ होता है कि हमारे अंदर एक आत्मा निवास करती है। और ये सब जो कुछ भी है आप देखोगे ये सब आत्मा की वजह से है ना। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सोल। अब ये शंकराचार्य ये कहते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं, है ना। नहीं देखो ये डेड बॉडी, कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो सारे लोग रोते रहते हैं, और सब लोग ये कहते हैं डेड बॉडी को उठाओ। इसका मतलब ये है कि लिवर है, किडनी है, सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ है, लिवर, किडनी, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल व्हाट इज नॉट देयर? दैट सोल इज नॉट देयर। वो शरीर से जब ये निकल जाता है तो फिर कोई व्यक्ति इसमें, इसके अंदर कोई अनुभव नहीं होता, हिलना डुलना नहीं होता, इच्छाएं नहीं करता, कोई चेतना नहीं, सोचता नहीं। इसका मतलब यह है कि आत्मा इसके अंदर की जा चुकी रहती। अब कोई कह सकता है कि आत्मा को दिखाओ भाई, अगर आत्मा होती है तो। जैसे देखो ये दूध है, दूध में घी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट there is a process to find out? जब ये देखो तिल के अंदर तेल है, लेकिन इसका प्रोसेस है। उसी तरह से गन्ने के अंदर रस है, उसको निकालना कैसे? प्रोसेस है। इस लकड़ी में आग है, उसका प्रोसेस है। तो इसका श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक, शंकराचार्य ये श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, वहां पर जहां भी आप बैठे हुए म्यूट करके ही आप इसको बोलिएगा। यावत पवनो निवसति देहे तावत पुच्छलं पृच्छति गेहे। गतवति वायो देहापाया भार्या बिभ्यति तस्मिन् काया। तो इसमें शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जब तक ये प्राण वायु इस शरीर में रहती है तब तक लोग पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं लोग। तावत पृच्छति कुशलम गे, तब तक लोग सब पूछते हैं कि और क्या हाल चाल है, सब पूछते हैं। गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय। और वही वायु जब चली जाती है, वही प्राण जब निकल जाते हैं, तो अपनी पत्नी भी उस शरीर से भय करती है। एक बार बैंगलोर में ऐसे हुआ, एक जब विवाह हुआ, एक नई नई दुल्हन थी, लेकिन एकाएक से क्या हुआ कि कुछ दिन ही बीते थे और उसकी मृत्यु हो गई। तो उस लड़की ने फोन किया गवर्नमेंट को कि ये जो है ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, आप लोग आइए और इसको, रात में अभी डेथ हो गई है, इसको ले जाइए, या फिर इसका
तो उन लोगों ने कहा कि अभी रात भर तो रुकिए, हम लोग सुबह पहुंचेंगे। तो उसने कहा कि अरे मैं रात भर इसके साथ थोड़ी रहूंगी, लाश है, लाश के साथ रात भर नहीं रह सकते। तो उस लाश से डर लगता है। आप में से कितने लोगों ने डेड बॉडी देखी है? आपने किसी ने डेड बॉडी देखी? वासु ने देखी है, अच्छा। नंदिनी ने भी देखी है, अच्छा। और मंगल आपने देखी है डेड बॉडी? आपने नहीं देखी होगी, है ना। शिवांश सर ने देखी है, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो सबने देखी है, मूवीज में तो देखी ही है ना। नहीं, लेकिन मूवी वाला जो है ना, उतना ज्यादा डर नहीं लगता। मैंने देखी है बनारस में मणिकर्णिका घाट पे, जब आप जाएंगे तो हर दिन मेरा बड़ा रुचि था इसमें, तो मैं जाता था और वहां जा करके जब चिता जलती है तो देखा करता था। आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा। सर क्या मतलब जलते हुए नहीं, देखा? हाँ हाँ, तो अलग अलग जो ये शरीर है, अब जब जलता है तो इसको ना, कई कई के शरीर में घी होता है काफी ज्यादा, किसी किसी में नहीं होता है। तो अलग अलग शरीर जो है, अलग अलग तरीके से शरीर जो है जलता है। आप लोगों ने तो, वैसे मैं बनारस में काफी इसको, कोई अगर जाएगा तो उसको देख सकता है। तो ये जो शरीर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, एक मिनट, लेकिन ये आपको सर मैंने तो ऐसे भी देखा है कि जहाँ पे जलाते हैं ना हमारे वहाँ, तो जब बॉडी, कुछ बॉडीज यंग होती है तो नहीं जलती है अच्छे से, तो उन्हें खुद तोड़ते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये डेड बॉडी है, ये जल रही है। तो ये रहता वही, देखो शरीर है ना, लेकिन ये जल रहा है कि नहीं? अब ये शरीर को देखो, अब इसको कोई नहीं पूछता है। इसका मतलब ये है, जो इसके अंदर की जो आत्मा है वो चली जाती है। इसलिए वो शरीर जो है, जो मरा हुआ शरीर रहता है। तो मैं आपको कहीं पर, अगर आप जो डेड बॉडी होती है वो देखने में बहुत बुरी सी लगती है ना। नहीं, अगर मैं, मेरे पास होता तो मैं आपको ये दिखाता। पोस्टमार्टम देखा है किसी ने अभी, कभी किसी ने पोस्टमार्टम? इफ यू सी पोस्टमार्टम, वो जो डेड बॉडी होती है, दैट इज जस्ट, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा वैसे। नो इफ दैट वैसा कुछ होगा, थोड़ा सा आप वो करके रखना। आई डोंट नो, यहाँ पर ये दे विल नॉट, आई मीन इतना उससे नहीं दिखाते हैं वैसे। देखो, दिस इज अ प्लेस वेयर, ये क्या करते हैं, जैसे कोई शरीर को ऐसे लेके आते हैं ना। कोई भी इसको दिखाता नहीं है ज्यादा वैसे तो, नोबडी विल शो। तो लोग कहते हैं कि भी हाउ दिस, बट एग्जैक्टली दे विल नॉट शो, नो वन विल शो द डेड बॉडी। ठीक है, एग्जैक्टली नो वन, तो इसमें दिखता नहीं है। ओके, आई हैड अ वीडियो, पर अभी मेरे पास वो वीडियो नहीं है। आई विल स्टॉप दिस। तो उसमें ये जो शरीर है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, इसको ऐसे चीर लगाते हैं, ऐसे खोलते हैं, किडनी निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं, है ना, अतड़ियां निकालते हैं। तो ये है ये शरीर। तो यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे कह रहे हैं, जब कोई डेड बॉडी रहती है, वो देखो आप
सब लोग रोते रहते हैं, लेकिन सब लोग डरते रहते हैं उस डेड बॉडी से, कोई उसके पास नहीं जाता। इसी को कह रहे हैं, जब तक इस शरीर में प्राण वायु रहती है, तब तक सब लोग हाल चाल पूछते हैं। और भाई नंदिनी जी ठीक हैं आप? और भाई मंगल जी सब ठीक है ना? रोहित जी अच्छा लग रहा है? वासु जी आपको सब ठीक है ना? खूब पूछते हैं। और अभी मर जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा, सब लोग कहेंगे अरे वासु कुछ कहना चाहते हो? वो आपने पूछा ना कैसे हो तुम, अच्छा। अच्छा वो बता रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये श्लोक को आप देखो, यावत पवनो निवसति देहे तावत कुशलम पृच्छति गेह। सब लोग कुशल गेह पूछते हैं ना, नहीं, और सब ठीक है कि नहीं, और घर बच्चे बाल बच्चे सब ठीक है कि नहीं। गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काई। अपनी पत्नी इस शरीर से डरती है, अपनी पत्नी भी इस शरीर से डरती है। सोचिए, इसका मतलब ये क्या है? ये केवल एक मांस और हड्डी और इन सब का पैकिंग है? नहीं नहीं, ये इसके अंदर एक आत्मा है जो चली जाती है। उसके बाद कोई नहीं तारीफ करता। जैसे ये देखो ऐश्वर्या राय है ना, नहीं, अगर मर जाए तब कोई नहीं कहेगा अरे मिस यूनिवर्स, ओ हो ये सब बहुत सारी चीजें। नहीं, मरने के बाद सब लोग उनको जला देंगे। आत्मा से किसी व्यक्ति का सुंदरता है ना नहीं? तो आत्मा को देखने का तरीका क्या है? एक तरीका ये भी है शास्त्र अध्ययन करना। दूसरा एक लॉजिक है। ये क्या लॉजिक है? देखो आप, हम कहते हैं ये मेरा नाक है, मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा शर्ट है, मेरा घर है, मेरी कार है, मेरे बच्चे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम कौन है फिर? जब ये कान हाथ नाक सब हमारा है, तो वो किसको बिलोंग करता है? वो उस आत्मा को बिलोंग करता है। आत्मा का है ये सब, है ना नहीं? मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर। अब कोई दूसरा एक प्रूफ आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद भी क्या जीवन होता है? मतलब आप देखो, मेरे स्क्रीन पे ध्यान से देखना आप, जस्ट इन केस अगर अब ये एक शरीर है मान लो, अब ये जो शरीर है जब ये मर जाता है, तो फिर आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में चली जाती है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ दिखाने के लिए हम आपको एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अब इसको ध्यान से देखना। इसमें एक प्रूफ दिखा रहे हैं, एक पायलट की स्टोरी बता रहे हैं। अब सब लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्रक्स सारा इस वीडियो में। ओके, पायलट, इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आई विल जस्ट शो यू इन सम अदर प्लेयर। चलो,
I'll just share you. आप लोग ध्यान से देखना ये. And now, one of the biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Here's Chris Cuomo with two down-to-earth parents who thought they understood the mysteries of life. That is, until their toddler began to talk. On March 3rd, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Okay, this is really tough. अब ये एक कहानी है. एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ एक बच्चे के रूप में जिसकी I स्टोरी. need somebody to help me. All right, I'm the volunteer. What do you want me to do? Okay, just go climb this thing and you have to hold me in case I fall. Done. James Leiniger is all boy, 6 years old and full of spirit. This is a special plane. It goes in reverse. You don't see a lot of that. James knows a lot about planes, especially war planes. What kind of airplane is that? It's a Corsair. His parents, Andrea and Bruce Leiniger, say from an early age James would play with nothing else. Strong. He was obsessed with airplanes. If you look around the house, that's all you'll see. Airplanes, helicopters, aircraft carriers. But then, when he was 2, the planes James loved suddenly began to give him frequent and frightening nightmares. I'd wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, baby, what were you dreaming about? He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. They sound like typical kiddie nightmares, but Andrea says they went on the same way for months. Here's James at age 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. And I said, oh, look, there's a bomb on the bottom of it. He said, that's not a bomb, Mama, that's a drop tank. तो अब देखिए क्या हो रहा है. देखो, ये जो छोटा सा बच्चा है, पिछले जन्म में ये एक फाइटर पायलट रहा और फिर now he has taken birth as a child, James, and then this James is obsessed with planes and he knows so much about planes. That means that same body which was as the pilot before is dead and the soul is now in another body as James. Now we'll see the video. Drop tank. I'd never heard of a drop tank. I didn't know what a drop tank was. तो ये बच्चा जो है बता रहा है कि ये मम्मी इनकी बोलती हैं कि देखो ये जो है ये यहाँ पे बॉम्ब है शायद प्लेन में. बोलते नहीं नहीं वो बॉम्ब नहीं, वो तो ड्रॉप टैंक है मम्मी. इसका मतलब वो छोटा सा बच्चा पिछले जन्म का सब कुछ उसको याद है. इसका मतलब ये है कि आत्मा जो है उस शरीर से अगले शरीर में आ जाती है. Andrea's mother suggested she look into the work of counselor and therapist Carol Bowman. Bowman has written 2 books, both supporting the proposition that sometimes the dead can be reborn. We are taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Bruce was deeply skeptical. He said there has to be a logical explanation. I don't believe in past lives. I don't believe in this stuff. But with the violent nightmares recurring 3 and 4 times a week, the Leinigers felt they had to do something. So with guidance from Bowman, they cautiously began to encourage James to share his memories. They say the result was startling. The nightmares immediately
started reducing in frequency. He went down from 3 or 4 times a week to maybe 1 a week, 1 every other week. And at that point was when he started to articulate more about these past life memories. Seems normal enough, a little boy improving when his troubles are directly addressed. But Bowman says this is more, that James was forthcoming because this is the age when former lives are most easily recalled. They haven't had the cultural conditioning, the layering over of experience in this life, so that the memories can percolate up more easily. These memories tend to fade between the ages of 5 to 7. His parents say between the ages of 2 and 4, James would reveal extraordinary details about the life of a former fighter pilot, mostly at bedtime, when he was drowsy. Bruce said, what happened to your plane? He said, it crashed on fire. And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, oh, the Japanese. Still, despite these extraordinary stories, Bruce remained dubious. Almost to prove they couldn't be true, he began to piece together the details James was sharing. And what he found, he says, shook him to the core. For in many instances, the stories appeared to match the facts. James seemed to be recalling real events, real people, in the life of a man who had been dead for almost 60 years. With each passing month, little James Leiniger seemed to be peeling back memories of a past life. Ooh, name. Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, what kind of plane did you fly? And he said, a Corsair. Yeah. He said a Corsair? He said the word Corsair. Mm-hmm. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities, like the time he was flipping through a book about planes when he was 4. And he got to the Corsair and he said, that's a Corsair. And he goes, you know what? They used to get flat tires all the time. In fact, historians and pilots agree that the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Another night, Bruce had come in and he said, do you remember where your plane took off? And he said it took off of a boat. Do you remember the name of your boat? Natoma. Do you remember what your name was? And he'd always say, James. But his name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, do you remember any friends or anyone else that you flew with? And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork, James 3. Okay. So this, okay. So ये जो वीडियो आपने देखा अभी, इसमें ये जो पेरेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनको पैसे दिला करके या फिर कुछ करके इनको इम्प्रेस किया गया है, but they are telling the truth that this body of their child is having the same soul from the previous birth, and he is remembering everything. वो सब कुछ याद है इनको. ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं. Now there is another proof, near death experience. Sometimes this is one Dr. Michael Sabam. He is from Emory School of Medical Science, USA. He says that sometimes just before death, the soul can come out of the body
and it can remember what all things was being done to the body. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, है ना. And he can see what all things happened, है ना. और इस पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारी किताबें, मूवीज में भी बहुत सारे आपने देखे होंगे पुनर्जन्म के ऊपर. तो ये देखिए, ये डॉक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरल ये रिसर्च कर रही हैं, और डॉक्टर इयान स्टीवनसन है जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं वेस्ट वर्जीनिया में. तो ये एक याद कर रहे हैं. देखिए, ये एक स्टडी है. ये एक स्त्री है. जब ये मंजू जो है ये 2 साल की थी, इसने कहा कि मैं एक कृष्णा नाम की जो लड़की है वो ही हूं, और कैसे वो एक कुएं में गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी. अब ये इसके पिछले जन्म और इस जन्म के दोनों मम्मियां हैं, है ना. नहीं, पिछले जन्म और इस जन्म की दोनों मम्मियों के साथ ये इस समय ये फोटो में दिख रही है. ये देखिए, ये जो रघुनाथ है, ये 3 साल का जो रघुनाथ है, वो चलते समय बोल रहा है कि मैं पिछले जन्म में, वो अपनी पत्नी को देखता है और वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है. ये जो रघुनाथ है वो याद करता है, और वो पिछले जन्म में वो अहमद था, तो वो याद करता है इसको. ये देख रहे हैं आप, है ना. और वो कहता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी है. इस तरह से ये बोलता है. इस तरह से पुनर्जन्म की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं. तो ये भी पुनर्जन्म भी एक प्रूफ है जिससे कि समझा जा सकता है कि दिस इज ऑल्सो ए प्रूफ दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट soul exists. So in Srimad Bhagavad Gita there is a verse, dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोह्यति. तो ये आप देख रहे हो, ये फोटो को देखो आप, है ना. ये जब छोटा बच्चा रहता है तो ये बड़ा होता है धीरे 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 धीरे, फिर आत्मा वही रहती है. बुढ़ा हो जाता है तो आत्मा बदल जाती है, अरे शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है, और अगला शरीर वो फिर से बुढ़ा हो जाता है. तो इस तरह से ये चलता रहता है. मतलब ये जो ऊपर का शरीर है ये तो बस एक कपड़ा है जो बड़ा होता रहता है. और तो ये सच को यहाँ तक हमने आज जाना. अभी यहाँ तक ही हम आज चर्चा करेंगे. अभी हमारे पास 6 मिनट है. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इसका जो सेकंड पार्ट है वी विल डिस्कस टुमारो, क्योंकि ये अभी बहुत सारे सीरीज में ही हम करेंगे इसको. तो क्योंकि फिर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस कोर्स को हमें कंप्लीट भी करना है. तो इसलिए हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे एक बार. ठीक है. तो अभी हमने हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट को चर्चा कर लिया है. हमारे पास 5 मिनट है. अगर आपका कोई प्रश्न है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस or clarifications, you can do now. You can raise hand or you can speak directly. एक बार मैं आपको फिर से ये जो भी हमने सीखा दिखाता हूं. सबसे पहले हमने कहा कि मैं कौन हूं. अलग अलग तरह से हमने ये देखा कि मृत्यु क्या होती है, क्या हम केमिकल्स हैं, क्या है पुरुष स्त्री हैं, क्या है हम. फिर हिंदू हैं, क्या है हम. फिर क्या हम केमिकल्स हैं जो कि टोटल 410 रुपए का ही है.
फिर हमने पोस्टमार्टम की भी बात की। तो हमने ये देखा कि ये वाला श्लोक हमने भी पढ़ा जिसमें शंकराचार्य कहते हैं, और फिर हमने ये पिंजड़े का एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे कोई कार है, कार के अंदर ड्राइवर है, वैसे ही सोल आत्मा के अंदर होता है। उसी तरह से जैसे पिंजड़े के अंदर एक पक्षी होता है, उसी तरह से आत्मा शरीर के अंदर होती है। और ये केवल केमिकल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अनुभव करने की क्षमता है, इच्छा करने की क्षमता है, भावनाएं हैं। ये सब कुछ रोबोट नहीं कर सकता। अब इसका प्रमाण क्या है कि आत्मा है? तो हमने ये देखा कि चेतना इसका प्रमाण है। चेतना है ना। अब कोई कह सकता है डेड बॉडी को उठाओ, है ना, नहीं, डेड बॉडी को उठाओ, तो इसका मतलब क्या लिवर किडनी सब तो वहीं पे है, तो क्या है? फिर इसके बाद हमने ये देखा कि मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा कान, इसका मतलब मैं कौन हूं? इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो जिसको ये हाथ इत्यादि है, जिसका, वो है ये शरीर, है ना, नहीं, ये आत्मा। फिर उसके बाद हमने ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, और हमने ये देखा कि किस प्रकार से मृत्यु के पास से कई केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। फिर हमने एक पायलट की स्टोरी का वीडियो देखा जिसमें कि उसने पुनर्जन्म लिया है, और फिर हमने इस पुनर्जन्म के ऊपर और नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा की। हमने ये भी जाना कि किस तरह से मंजू का जो है जन्म होता है, कृष्णा पिछले जन्म में थी, वो किस तरह से अहमद जो पिछले जन्म में था, इस जन्म में रघुनाथ है, और वो अपनी पत्नी को पहचान लेता है और बुलाता है कि वो तो मेरी पत्नी है। तो यहां तक हमने जाना। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस श्लोक को हमने थोड़ा पढ़ा। किस तरह से देह जो है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम, जैसे ये कुमार बड़ा होता है फिर बुढ़ा हो जाता है, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति पर से जो है धीर जो है मोहित नहीं होते, धीर लोग। ठीक है। तो इसके ऊपर एक और श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बीच में अभी आया था। देखो आप यहाँ पर इस श्लोक को भी कोट किया गया है। देखो, पुष्पे गंधम तिले तैलम इक्षौ गूढ़म पयसि धृतम काष्ठे वहनी पश्यति आत्मा विवेकतः। ये उपनिषद का श्लोक है। पुष्पे गंधम तिले तेल, जिस प्रकार से पुष्प में गंध होती है, तिल में तेल होता है, इक्षो गूढ़म पयसि धृतम, इक्षो मतलब ये जो ईख है, ईख मतलब गन्ना, काष्ठे वहनी, काष्ठ में अग्नि होती है। तो वहनी और अग्नि में अंतर है। वहनी मतलब जो छिपी हुई आग है, और जो अग्नि जो जलने लगती है वो अग्नि होती है। उसी तरह से आत्मा भी इस शरीर में निवास करती है। यहां तक हमने चर्चा किया। इसका सेकंड पार्ट हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपका कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। If you have any questions or comments, you can say. सर तो कैसे हम, मतलब जैसे हमने ये केस देखा कि अगले जन्म में जाकर बंदे को याद आ रहा है कि उसका पिछला जन्म क्या था, क्या हम अभी भी फिगर आउट कर सकते हैं? क्या? अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज गुड क्वेश्चन। But this privilege is given to some people, that they can remember their past life. Everyone is not given this privilege, because if you remember so many lifetimes, you will be just bogged down with the thoughts of so many enemies and friends and relatives and all. एक मान लो किसी जन्म में, पिछले जन्म में कोई व्यक्ति था और उसको किसी ने मारा था, तो इस जन्म में उसको पीटता रहेगा,
फिर उससे पहले वाले जन्म में भी उसको याद रहेगा, तो वो फिर इस तरह से इस जन्म में जी ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको ये याद नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों को ये याद रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को याद रहे, क्योंकि उनके इस प्रकार के कर्म फल हैं जिसलिए उनको ये याद रहता है। तो किसी किसी को ही कोई कोई ऐसा सोल होता है जो कि इतना फॉर्चुनेट होता है कि उसको पिछले जन्म का याद होता है। सबको अगर सारा याद रहेगा, मान लो किसी जन्म में कोई कुत्ते की योनि में था और किसी ने उसको पत्थर से मारा था, तो अब जाके उसको मारने लगा, रे तुमने मुझे क्यों मारा था? तो इसलिए इसको हमेशा नहीं रहता ये। हाँ वासु। सर बट इजंट देयर ऐसा कोई वे नहीं है जिससे हम मतलब लाइक सोल तो सर किसी टाइम पे डिपेंड नहीं करती सोल की प्रेजेंस, ठीक है। सोल है मतलब लाइक बहुत ऐसी सी चीज है, मतलब बहुत वनरेबल चीज है सोल। तो सर अगर हम सोल को डिस्कवर करें अपनी ही, मतलब उसे फील करें, तो सर हमें खुद ब खुद नहीं पता लग जाएगा कि क्या करना है, आगे क्या होगा। लाइक इट्स नॉट लाइक कि हमें दिखे, बट अ सेंसेशन ऑफ दैट कि द सेंसेशन इज देयर बिकॉज द सोल इज एग्जिस्टिंग, बिकॉज ऑफ विच वी आर टॉकिंग। अभी अगर डेड बॉडी होती तो इस तरह से बात नहीं कर रही होती। तो ये जो चेतना है, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि आत्मा एग्जिस्ट करती। अब कोई ये कहता है कि आत्मा जो है ये तो अगर ये मतलब इसका हमें कुछ पता चल जाता तो ठीक रहता। हाँ, तो वो यही पद्धति है, ये जो भक्ति का रास्ता है या फिर जो आध्यात्मिक रास्ता है, इसमें चल के हम अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को जान जाएंगे। जैसे अभी तो हमको ये पता चलेगा कि हम इस पिछले जन्म में क्या थे या उसके पिछले जन्म में क्या थे, ये तो छोटी मोटी जानकारी। वास्तविकता में हम कहां पर थे और वहां पर से कैसे हम ये अलग अलग कपड़े बदल रहे हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें, जब हम आध्यात्म को अच्छे से पालन करते हैं, इसको कहते हैं सिद्ध देह का स्मरण या फिर स्वरूप सिद्धि, ये एक दिन हो जाती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा पद्धति अभी करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक है वासु? हाँ जी सर, यस सर। और कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो मिलते हैं कल। एक बार फिर से हम मिलेंगे और इसको हम जो है एक बार फिर से ये जो बाकी के सेशन, बाकी का जो पार्ट है, इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो 4 सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बचे हुए हैं जिनको हम रिवाइज भी करेंगे। तो ये हमारा 4th सेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।